Assalamu alaikum. Good morning everyone. Myself Sabah Fatima, anchor of the day. I welcome everyone to the wonderful event today. Is the very first ISAS Information Search and Analysis Skills Meets of our institution. So tighten your seats because this is going to be the most experience of our life. With the permission of our principal sir, Mr. Mujibur Rahman sir, I would like to welcome all the guests present today. Dr. Jafar, Managing Director, Gelfleet Group, Galaxy Foundation. Dr. Bakar, Corresponding Administrator of Galaxy Foundation. Dr. Zeba Mehdi, Dr. Nida Khan, Dr. Anjum Khatun, Dr. Alina Khan. My name is Aisha Samreen. Welcome you all. Today I am going to explain cardiovascular system. Cardiac means heart, vascular means blood vessels. What is the main organ of cardiovascular system? Heart. Heart क्या है? Organ है. To pump the blood, it is an organ. It is an organ. हार्ट ब्लड को पंप करता है तो पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है. बॉडी के हर हिस्से में हर सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. कंपोनेंट ब्लड वेजल्स. देयर आर 3 टाइप्स: आर्टरी, वीन्स, कैपिलरी. आर्टरी फॉर्म carry blood away from the heart. Vein carry blood towards the heart. Capillary where nutrition and gases exchange occur. Now let us come to introductions of heart. What is heart? Where is the presence of heart? In the middle mediastinum. What is mediastinum? Middle space between two lungs inside the thoracic cavity. Boundaries of mediastinum. There are 4 types: anterior, superior, anterior, posterior, superior, inferior. This is a sternum, myobia-sternum, Ziphi-sternum. For anterior we have sternum. This is a vertebra body. Posterior we have vertebra column. दिख रहा है ना यहाँ पर कॉलम बने हुए? Vertebra column. Superior thoracic eyelids. Inferior we have diaphragm. Now divided into mediastinum are divided into 2 parts: superior and inferior. Superior sternal angle pass through किसको करा? Inferior body of T4. What is T4? Thoracic vertebra. Inferior are divided into three parts with the help of pericardium. Divide करें हम इसको anterior mediastinum, posterior mediastinum, middle mediastinum. Pericardium का कंटेंट क्या है? Middle mediastinum. Now anterior को हम इधर और बता रहे हैं उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है. Narrow space, internal artery, internal thoracic artery. ये क्या है? पेरिकार्डियम है. ये पेरिकार्डियम है तो किसके बाजू के? स्टेर्नम के. स्टेर्नम बिहाइंड द पेरिकार्डियम, स्टेरियो पेरिकार्डियम लिगमेंट्स. लिम्फ नोड किसको बोलते हैं? स्विलिंग. और दिस लोवेस्ट पार्ट ऑफ थाइमस प्रेजेंट इन एंटीरियर. Areolar tissue means areolar tissue is a part of present connective tissue contain of posterior mediastinum. Esophagus form food pipe. Artery form descending thoracic aorta. कितना है वेट ऑफ हार्ट? रेंजेस बिटवीन इन मेल अडल्ट 340 ग्राम्स, फीमेल 232 to 80 ग्राम्स. साइज ऑफ हार्ट कितना है? क्लोज फिस्ट.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Myself Sayyid Ibrahim Hussaini. Next I am going to explain about CPR. CPR is a emergency medical procedure to save person's life. ठीक है. First call to emergency 911 or 108. Then check call to that person. Hello, it's okay. Then next पहले मेडिकल प्रोसीजर है कि पर्सन की लाइफ कैसे सेव करें इमरजेंसी में. एक्सीडेंट, इन केस ऑफ एक्सीडेंट, देन स्विमिंग के टाइम में कुछ भी ऐसा इमरजेंसी में ऐसा कुछ हो गया तो जब एम्बुलेंस आए तक, इमरजेंसी सर्विस आए तक, जब तक पर्सन को कैसे सेव करें तो प्रोसीजर है. तो पहले पर्सन को टैप करें शोल्डर पे. इट्स ओके, आर यू ओके. देन पर्सन नॉट रिस्पॉन्डिंग, प्लीज़ चेक ब्रीथिंग. दैट्स check breathing and chest compression also check. Then next if person not breathing, then start CPR. In case person breathing but unconscious but not giving CPR, but सिर्फ ऐसे करना है कि उसको एनर्जी सेविंग में ऐसा कर देना बस. ये पैर ऐसा फोल्ड करके थोड़ा सा चले, ये हाथ स्ट्रेट रखिए. नेक्स्ट हैंड हाथ स्ट्रेट रखिए. ये पैर बस एक बार पीछे ले, ये पैर ऐसा बस. जस्ट मॉनिटरिंग करना है इसको. उसके बाद में नॉर्मल हो गए अच्छा है, नहीं बोल तो जब ब्रीथिंग भी नहीं हो रही तो जब CPR देना स्टार्ट करना है. चलो CPR देन स्टार्ट CPR. चलो बस नीचे. पर्सन को हमेशा सेफ जगह पे लेना. क्यों बोले तो इनकेस एक्सीडेंट हो गया तो रोड पे वहीं लिए तो बाइक्स वगैरह आते, डेंजर जोन में नहीं लेना. बेटर सजेशन है कि ट्री के नीचे, झाड़ के नीचे ले लिए तो फ्रेश ऑक्सीजन भी मिल जाती जब का जब भी. उसके बाद में जब प्रोसीजर स्टार्ट करना, उसके बाद जस्ट ऐसा टैप करना, उसके बाद चेक कर लेना ब्रीथिंग वगैरह. उसके बाद देन 30x2 30 कंप्रेशन कैसा देना कि जस्ट ये हाथ सेंटर ऑफ द चेस्ट विथ स्लाइटली निपल्स के स्लाइटली में सेंटर ऑफ द चेस्ट फर्स्ट हैंड रख के नेक्स्ट सेकेंड हैंड इंटरलॉक कर देना. इंटरलॉक करके एल्बो स्ट्रेट रखना, एल्बो फोल्ड नहीं करना. फोल्ड करें तो कंप्रेशन नहीं आता. एल्बो स्ट्रेट देन स्टार्ट. और फास्ट एंड हार्ड करना कंप्रेशन. 2 सेंटीमीटर डेप्थ अच्छे से ऐसा करना, हार्ड एंड फास्ट. 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा. जल्दी गिरना. उसके बाद नेक्स्ट 30x2 30 कंप्रेशन, 2 माउथ टू माउथ ब्रीथिंग. देन थोड़ा चिन ऊपर कर देना, एयरवे ओपन कर देना. ये देखना कि इन केस जब एक्सीडेंट होता, जब वॉमिटिंग्स वगैरह कुछ आ जाती उसमें माउथ में, उसको क्लियर कर देना. नहीं बोलो तो इन केस नॉर्मल ऑक्सीजन मास्क जो रहता वो मास्क लगा के भी आप ब्रीथिंग कर सकते. नहीं बोलो तो क्लियर है, माउथ एयरवे क्लियर है तो जब ऐसे खोलो, थोड़ा पीछे लेके हेड चिन माउथ ओपन करके एयरवे माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देना ऐसे. टू ब्रीथिंग. नेक्स्ट वैसे ही करते रहना प्रोसीजर जब तक के इमरजेंसी एम्बुलेंस वगैरह नहीं आई, जब तक कंटिन्यू करते ना. आप थक गए, दूसरे को किसी को आपके बाईस्टैंडर साइड में जो है उनको बोलना कि आप कंटिन्यू करो. थैंक यू. सॉरी फॉर सम मिस्टेक्स. Morning to everyone. Good morning to everyone. Respected chairman sir, respected sirs, respected doctors. Myself Farha Fatima. Today's my topic is about blood supply to heart. How the blood supply to heart, I will explain. So let's start the topic. Coronary arteries. There are two types of coronary arteries, right coronary arteries and left coronary arteries. In right coronary arteries, it supplies to right atrium, right ventricle, SC node and AV node, postal septal wall and inferior
portion of left ventricle. In left coronary artery, it will supply to two branches. Left, it's very important for us. Left anterior descending artery and circumflex artery. In left anterior descending artery, anterior wall, apex, anterior ventri, circular septum. In circumflex artery, left atrium and left ventricle. In left ventricle, there are two branches. What are they? Lateral portion, posterior portion. The lymphatic range of heart. First, the intracardial lymphatic. They live in here, the epicardium, and उसके बाद है लेफ्ट इंट्रियल कॉर्नरी ग्रुप्स, जो हमारा एट्रोवेंट्रिकुलर यहाँ पे वो मौजूद होता है, जो एट्रोवेंट्रिकुलर के और वेंट्रिकुलर के बीच में वो रहता है. ए सिंगल lymphatic skin PA and LA. PA is a know about the paratracheal lymphatic and LA is the arterial medial lymphatic में रहता है. और इज लास्ट वन इज अ ट्रेचर ब्रॉन्चियल एलएनएस, यानी यहाँ से होता है. और यहाँ से हमारा पूरा जो ड्रेन है वो एक पाउच में स्टोर होता है जिसका नाम है क्रिस्टीन. So, good morning to everyone, respected principal and respected chairman and to all the chief guests. Today I am going to explain about the cardiac cycle. Okay, so now what is cardiac cycle means? The sequence changes take place during the beginning of first beat to next beat. Okay, फर्स्ट बीट से नेक्स्ट बीट का मतलब ये है, मतलब कि एक धड़कन से दूसरी धड़कन के दौरान जो होता, that is called cardiac cycle. So we will study about the cardiac cycle. Now see this. Cardiac cycle is essentially split it into two phases. Okay, systole, diastole. What is systole means? Contraction. Diastole means relaxation. So now we will see how the contraction will goes on in heart and how will the relaxation. So see here, from superior vena cava and inferior vena cava. ठीक है? It will carry the deoxygenated blood from the lower respected part of the body. It will carry the blood from the lower part of the body and it will carry the blood from the upper part of the body. And now I will explain simultaneously so that you will not be confused. Okay, from left side, the pulmonary veins will carry the oxygenated blood and it will supply to the atrium and it will supply to the right atrium. Understood here? So now, when the atrium pressure, right atrium, left atrium, when the right atrium and left atrium pressure, blood pressure is increases, these two walls will open. Okay. Now, from the right atrium and left atrium, blood flow down to towards the right ventricle and left ventricle. Understood? Obviously, here also blood pressure will increase, so that it has to move towards the pulmonary semilunar valve. Through semilunar valve, when the semilunar valve will open, the blood will goes towards the right one will send the blood to the pulmonary artery and left one will send the blood to the pulmonary aorta. Is it clear? Now we will see that the sounds of heart, when the first sound will come and when the second sound will come. So when these two walls will close, the lap sound will produce. Okay, understood? Then when these two semilunar walls will close, the dup sound will produce. Now we will talk about the contraction duration. Atrium contraction is for 0.1 second. Okay. Now ventricle contraction is about for 0.3 second. The relaxation time of 4 chambers is 0.4 seconds.
Now total कितना हुआ? How much total? 0.8 second. So what you are understanding by this cycle is the whole cycle is about 0.8 second only. Okay, understood? Now we will talk about the ECG. ECG is a electrocardiogram. Electrocardiogram क्या है? It will record the electrical signal from the heart to check the different conditions. Okay. Sometimes the people heartbeat is too slow and sometimes too high. Cardiac, in the coronary diseases, the blood supply will block, interrupt due to the inflammation of fat substance. Okay, so now ECG हम कैसे करेंगे? कौन से जगह पर हम कौन से पार्ट्स पर हम आपको लिड्स लगाना पड़ेगा? So we will see here. Are you able to see these points? Yes. Now see this. These are the positions. First हमको फर्स्ट लिड हमको कहाँ पर लगाना है? इंटरकोस्टल स्पेस. यहाँ पर देखिए. Are you seeing this? 1, 2, 3, fourth one. Fourth intercostal space. Right side में लगाना है. First lid on the chest. On the chest. Okay. Second lid हमको कहाँ लगाना है? इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड पे लगाना है. सेम. ओके, हम थर्ड में नहीं जाएंगे क्योंकि इट विल बी कंफ्यूज. सो मिड क्लेविकुलर लाइन यहाँ पर होगी, वहाँ पर लगा देना हम. ओके, फोर्थ लिड लगाना. देन थर्ड लिड हम सेकेंड और फोर्थ के बीच में लगा दें. एट द सेंटर ऑफ थर्ड एंड सेकेंड एंड फोर्थ के बीच में लगाना. सो इट विल नॉट बी कंफ्यूज फॉर यू पीपल. ओके, नाउ सी anterior axillary line. This is the anterior axillary line. Okay. फिर सिक्स्थ वन कहाँ पर लगाएंगे हम? मिड एक्सिलरी लाइन पर. ठीक है, यहाँ पर. फिर लिम्स का भी होगा, राइट. सो लिम्स का कहाँ पर लगाएंगे हम? कहाँ पर लगाएंगे? एनीवन हैविंग आइडिया ऑफ दैट? It has some colors for clues, right? Yellow, red, green. So you have already known this. So okay. Now we will talk about the relaxation. जब देखो 0.8 सेकेंड का कार्डियक साइकिल है तो वेंट्रिकल सिर्फ 0.1 में हो रही, तो 0.7 उन्हें क्या रहती? डायस्टोल, मतलब रिलैक्स रहती. अंडरस्टूड? 0.7 क्या रहती? रिलैक्स रहती. नाउ यहाँ पर आप कैन एनीवन से दिस द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल? एनीवन कैन गेस? नो. सो सी 3 सेकेंड यहाँ पर हो जा रहे. सो बचा कितना? 5 सेकेंड. सो डायस्टोल कितना रहेगा वेंट्रिकल का? 0.5 सेकेंड रहेगा. अंडरस्टूड? 0.5 सेकेंड रहेगा. और कुछ बचा? थैंक यू सर. जो सर सिखा इतना शॉर्ट पीरियड में आप लोग का बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा, और भी इम्प्रूव होंगे आप लोग. और सर जैसा होता है, सब सर जैसा होता है, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अवेयरनेस देना. अपने जो भी आप दे रहे कोर्स वगैरह, दूसरों को भी आप अवेयरनेस दीजिए, प्रमोट करिए. हम जैसा सीख रहे तो हम दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करते हैं. Told you about symptoms and signs of heart attack. Now I will explain you about first aid of heart attack. I will answer in 2 parts. First and most important, heart attack is an emergency. When there is a heart attack, the blood flow in one of the arteries completely drops because of blood clot. No blood flow in that area, and because of that, cells are getting damaged as time passes. The most important thing is to get the blood in that artery very fast. So that means no blood clot in the artery as soon as possible. Word of thanks. Assalamualaikum. Thank you, Honorable Chief Guest, Dr. Chef Usam sir, and our director, Dr. Jafar sir, and Bakar sir, respondent, myself, Muhammad Mujib Rahman. Participate also, their thanks because they're doing the coordinate job here. Alhamdulillah, this seminar is really good. All students will do very, very good. I
I thanks डॉक्टर जाफर जो उन्होंने अपने बच्चों को ये हिसाब का जो एजुकेशन दिया और उसको आप लोग भी बेस्ट इन द बेस्ट दिए रिटर्न्स में. वेरी वेरी थैंक्स एंड सो Really appreciable for one and all. In a short span of time, you people did a good job. Nicely presentation you did. For first attempt, it's a good trial you did. For next time, do well prepare and do your best. आज का जो शाम सर का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप सर स्पेशल गेस्ट चेयरमैन सर गैलेक्सी फाउंडेशन के आए हैं अपना कीमती वक्त निकाल कर. इसके साथ साथ अपने हमारे डायरेक्टर जाफर सर का शुक्रिया अदा करूँगा. गेस्ट फैकल्टी का प्रिंसिपल से मुजीबुर रहमान सर का सेल्फ डॉक्टर बाकर का आप तमाम भी माशाल्लाह. आज का जो सेमिनार था इतने कम टाइम में इतना अच्छा प्रेजेंटेशन करना मैं तो आज तक मेरी जगह नहीं लगी. इवन 10 to 15 डेज में इतना अच्छा प्रेजेंटेशन यानी कि पीजी लेवल बैचलर और ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का सेमिनार था. अच्छा अब्दुल्ला इतना कम टाइम में इतना करे जाफर साहब माशाल्लाह. आप लोग जो ट्रेन करे हैं इतना तारीफ करने का मैं माशाल्लाह. A very good afternoon to all of you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would like to welcome our beloved chairman sir, Dr. Husamuddin sir. Please give him a big round of applause. And with the permission and the blessings of him, we are here, alhamdulillah. And I would like to welcome Mujibur Rahman sir, principal sir, Dr. Bakar sir, administrator sir, and Dr. Anjum Khatun madam, and Dr. Zeba Mehdi, Dr. Nida Khan and Dr. Alina Khan. These are our guests today, and I welcome all of you, all of my students here. And just I would like to congratulate you people that this was your first attempt, very first attempt, and within a few days of time, that means only within a days of 10, and within short duration you have prepared very well. And I appreciate you and I congratulate you people. This is not a small thing. अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत अच्छा करे, बहुत अच्छा अटैम्प्ट था ये. दिस वाज योर फर्स्ट अटैम्प्ट. इंशाल्लाह आगे आप लोग और इम्प्रूव होंगे इंशाल्लाह. और जो है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल मैं सबका क्रेडिट जो है हमारे टीचर्स, लेक्चरर्स, डॉक्टर्स जो आप लोगों को पढ़ाए हैं. ये कार्डियोलॉजी का जो है कंप्लीट हुआ है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो हमारा कंप्लीट हुआ है. अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग थियरी क्लासेस भी कंडक्ट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग डिसेक्शन के ज़रिए जो है हम लोग बताए भी हैं स्टूडेंट्स को कि किस तरीके से ह्यूमन हार्ट को डिसेक्ट किया जाता है और किस तरीके से इसको समझना चाहिए बोल के. आप लोग भी अच्छा समझे, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिप्रेजेंट करें. हाँ ये फ़र्स्ट अटैम्प्ट है, थोड़ी भूल चूक हुई, इट्स ओके, नॉट एन इशू. और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल बाय द बॉटम ऑफ द हार्ट आई वुड लाइक टू थैंक हुसाम सर दैट ही हैज़ ओनली गिवन अस दिस अपॉर्चुनिटी. और ये हमको जो है प्लेटफॉर्म दिए कि जो है हम मल्टीपल कोर्सेज से ये एक प्लेटफॉर्म के अंदर हम रन कर रहे हैं. आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये हमारा कॉलेज जो है ये एक मतलब आफ्टर 10th यानी कि जो है इंटरमीडिएट टू पीजी लेवल के पैरामेडिकल कोर्सेस हम लोग यहाँ पर रन कर रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वोकेशनल है जिसके अंदर फिज़ियोथेरेपी और लैब और नर्सिंग है जो 10th के बाद के बच्चे कर सकते हैं. और इंटरमीडिएट पास्ड बच्चे जो हैं, कोई भी इंटरमीडिएट पास हो, जैसा कि इंटर एसएस क्या नाम है अपने इंटर आपके बाईपीसी, एमपीसी, सीईसी हो या फिर वोकेशनल से हो, कोई भी इंटरमीडिएट पास बच्चे हमारे पास के ये पैरामेडिकल डिप्लोमास में एडमिशन ले सकते हैं. जो डिप्लोमा है एनेस्थीसिया में, ऑपरेशन थिएटर में, कैथ लैब में, डायलिसिस में, मेल नर्सिंग में और ऑप्टोमेट्री में, रेस्पिरेटरी थेरेपी में, ये इतने सारे बेहतरीन डिप्लोमास है. 2 साल का इसका ड्यूरेशन होता है और इंटरमीडिएट पास बच्चे ये कर सकते हैं. इसकी फ़ीस बहुत कम है और अल्हम्दुलिल्लाह ये कोर्सेज़ कंप्लीट करते ही आप लोगों को बहुत ही अच्छे सैलरीज़ पे जो है यहाँ पर जॉब मिल रही है. और गल्फ़ में तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और अब्रॉड में भी डिमांड है. और ये डिप्लोमास जो है रजिस्ट्रेशन होते हैं डीएमई से और इन डिप्लोमास की वर्ल्ड वाइड वैलिडिटी है अल्हम्दुलिल्लाह. और जो है हुसाम सर की मेहनत से जो है हम लोगों को ये भी एफिलिएशन हासिल है कि जो है हम लोग इंटरमीडिएट के बाद जो बीएससीस होते हैं, तमाम बीएससी जैसे कि बीएससी एनेस्थीसिया, बीएससी ऑपरेशन थिएटर, बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी, बीएससी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी और
BSc रेडियोलॉजी वगैरह, इन तमाम BScs के साथ साथ BSc नर्सिंग, BPT वगैरह भी अगर हमारे पास सब अवेलेबल है। अगर आप लोग जो है इंटरमीडिएट पास्ड कैंडिडेट्स हैं तो ये 3 साल, 3.5 साल, 4 साल, 4.5 साल के जो है प्रोफेशनल कोर्सेस हम लोग यहाँ पर रन कर रहे हैं और बहुत ही कम फीसेस में जो है हम लोग रन कर रहे हैं। तो हम लोगों की ये गुजारिश है कि जो है आप लोग अपनी ये पैगाम जो है अपनी कम्युनिटी में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करें, क्योंकि हमारे ग्रुप के अंदर तमाम डॉक्टर्स हैं जो है ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं डायरेक्टली और ऑन हैंड जॉब ट्रेनिंग दे रहे हैं और जो है प्रैक्टिकल सेशंस के साथ, लाइव डिसेक्शंस के साथ, मॉडल डिसेक्शंस के साथ हम लोग यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा भी, डिग्री के अलावा भी कई सारे PG प्रोग्राम्स भी है जो है एक रूफ़ के अंदर हम लोग रन कर रहे हैं। तो ये सब जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये अपॉर्चुनिटी हम सबको प्रोवाइड कर रहे हैं। गैलेक्सी फाउंडेशन के चेयरमैन हुस्साम सर जो है ये हमारे को प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और इस चीज़ को जो है आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप लोग यहाँ पर आएँ, एडमिशन लें और अपना फ्यूचर सुनहरा बनाएं। इसी स्पीच के ज़रिए जो है मैं हम तमाम के हर दिल अज़ीज़ शख्सियत और हैदराबाद के मशहूर शख्सियत डॉक्टर हुस्सामुद्दीन सर को दावत खिताब देता हूँ कि सर प्लीज़ स्टेज पर आए और हम लोगों को मुखातिब करें। थैंक यू। प्लीज़ गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, स्टैंडिंग ओवेशन फॉर हिम प्लीज़ एवरीवन। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आली जनाब जाफ़र साहब जो यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और बाखर सर और मुजीब सर, ज़ेबा मैडम, नीदा मैडम, अंजुम मैडम, अलीना मैडम, मैं इन तमाम यहाँ पे जो गेस्ट है, यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, मैं इनका दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। जो सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करूँगा जो जाफ़र सर यहाँ पर कम पीरियड में, कम तादाद में, कम फीसेस लेके आप लोगों को एक गोल्ड, एक डायनेमिक बना रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि उस कुरान की आयत से शुरू करूँगा जो आप लोग आज हार्ट के बारे में, आप लोग पूरे के पूरे स्टूडेंट्स हार्ट के बारे में बता रहे थे, तो मैं उस कुरान की आयत से शुरू करूँगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, आगाह रहो, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। तो आप एक डॉक्टर पढ़ रहे हैं, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में बता रहा है, इरशाद फरमा रहा है कि आगाह रहो अल्लाह के ज़िक्र से। अल्लाह का ज़िक्र ही से हम आगाह रहेंगे तो हमारे दिलों को इत्मीनान और क़ल्ब को सुकून और हासिल होता है। जैसा कि आज क्या है ना, हार्ट अटैक हो रहे हैं, हार्ट बीट्स हो जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर्स बढ़ रहे हैं, इंक्रीज़ डिक्रीज़ वगैरह हो रहे कर रहे हैं, मगर हम इसका ट्रीटमेंट अल्लाह के ज़िक्र से अगर हम करेंगे तो हमारे क़ल्ब, हमारा सुकून रहेगा और हम फ़तेह नुसरत कामयाबी हासिल करेंगे। मैं यहाँ पर ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं जनाब जाफ़र साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये जो इनिशिएटिव लेके जो बच्चों को, ख़ास तौर पे ओल्ड सिटी के बच्चियाँ क्या है बोले तो चुप वेस्ट ऑफ क्या है बोलते ना CEC के तरफ चले जा रहे हैं, फिर CEC करे के बाद में क्या है ना ग्रेजुएशन BCom BA के तरफ चले जा रहे हैं। वो पढ़े के बाद में क्या हासिल हो रहा है ये बोलिए मेरे को। वो पढ़े के बाद में कई थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स क्या है ना जॉबलेस है। तो ये हम लोग इनिशिएटिव लिए कि क्या है ना आप लोगों का कैरियर, आप लोगों का फ्यूचर्स, आप लोगों का क्या है जॉब्स क्या है बोले तो ना आप लोगों का बेरोज़गार नहीं रहना बोल के, तो वर्ल्ड वाइड क्या है बोले तो ना आप लोगों को जॉब्स मिल रहे हैं। सिर्फ नॉट ओनली फॉर इंडिया, इंडिया के बाहर मिडिल ईस्ट को जाओ, आप यूरोपियन कंट्रीज़ को जाओ, इसका रिक्वायरमेंट्स फुल है। उसके प्लेसमेंट्स की भी मैं गारंटी और वारंटी दे रहा हूँ मैं कि आप लोगों को इंडिया में भी मैं आप लोगों को प्लेसमेंट दूंगा, इंडिया के बाहर भी मैं आप लोगों को प्लेसमेंट दूंगा इंशाअल्लाह ताला। मगर आप लोग जाफ़र साहब का साथ दीजिए, जाफ़र सर के क्या बताना हाथ मजबूत करिए। और जैसा कि जाफ़र सर बताए कि ये मिशन आज आप यहाँ पर बैठ के सिंगल लेके हम लोग यहाँ पे मिशन स्टार्ट करें, ये मिशन को फैलाना आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। आप अगर यहाँ पर इतनी अच्छी डायनेमिक पर्सन, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स रह के यहाँ पर आप लोगों को कोचिंग दे रहे हैं, तो आप लोगों के शोल्डर्स के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि उम्मत मुसलमान तक पैगाम पहुँचाएँ और अच्छे से अच्छे क्या होते हैं क्लासेस अटेंड करें। और जैसा कि पूरे लॉट ऑफ जो कोर्सेज जाफ़र सर बताए, मैं फिर दोबारा से रिपीट करना नहीं चाह रहा हूँ। तो ऐसे इंटरमीडिएट के मेडिकल के कोर्सेज हैं, बाज़ इंटरमीडिएट पास हो गए के बाद में
पैरामेडिकल बोर्ड के भी कोर्सेज है, 2 इयर्स के कोर्स है, जो डिप्लोमा कोर्सेज बोल के, जो इंटरमीडिएट पास करे, जो ग्रेजुएशंस के लेवल के कोर्सेज है, जो ग्रेजुएशंस पास करके उन्होंने पीजी लेवल के मेडिकल के कोर्सेज है। ऐसे कोर्सेज जो आप लोगों का फ्यूचर्स बने। और ये कोर्स ऐसा है, ये क्या है ना, पूरे सहाबियाँ वगैरह खिदमत खल्क़ के लिए ठहरते थे जंगों में वगैरह। किसी को क्या है ना ऑक्सीजन है, कोई लेडीज़ ख़वातीन है ज़ख्म हो जाते थे जंगों में, तो क्या है ना पट्टियाँ बैंडेजेस वगैरह क्या है ना ख़वातीन बनते थे। जब अपना इस्लाम खुद बता रहा, जो हमारा क्या है ना दीन बता रहा, हमारा प्रोफेशनल्स बता रहा, तो हम भी क्या है ना बढ़ चढ़ के इसमें पैसे प्रोफेशनल, जैसा जाफ़र सर पैसे प्रोफेशनल्स नहीं बल्कि कम फ़ीसों में ले रहे हैं, आप भी किसी की खिदमत के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। हम लोग लॉट ऑफ मेडिकल कैंप्स करते हैं, वो कैंप्स भी मैं आपको बोलूँगा कि आपकी टीम भी क्या बताना वो कैंप्स में अटेंड करिए। इंशाल्लाह ताला 22 का एक मेडिकल कैंप होने वाला है, मेगा मेडिकल कैंप्स होने वाला है। मैं इंशाल्लाह ताला आपकी टीम को, आपके स्टूडेंट्स को भी ले जाऊँगा। मेरे पास के स्टूडेंट्स हैं, कई स्टूडेंट्स हैं, तो लॉट ऑफ बेनिफिट्स आप लोगों को प्रैक्टिकल्स करने से भी आप लोगों को हासिल होता है। तो आप जो आज डेमोस्ट्रेशन दिए, पूरे के पूरे बच्चियाँ काबिल तारीफ़ है। मैं उन लोगों को फिर से एक मुबारकबाद देता हूँ जो आपने ये इनिशिएटिव लेके एक अपने जो स्टेज शो है, जो डेडनेस है, डेडिकेशन है, वो आप लोगों में ग्रोथ होना, बल्कि जो आज जाफ़र सर ये जो चीज़ प्लान सेट करे इंशाल्लाह ताला इसको हम लार्जेस्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। मीडिया भी आपके साथ है, जो हम बता सकते हैं कि वाकई में क्या ना ख़वातीन भी, बच्चियाँ भी एक डायनेमिक मेडिकल प्रोफेशनल्स है और क्या ना खिदमत खल्क़ के लिए, सोशल एक्टिविटीज़ के लिए, NGOs से अटैच रह के डेवलपमेंट्स करने के लिए आप लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। बल्कि हम लोगों को भी एक हिम्मत बढ़ती, और आज हम एक 10 काम कर रहे हैं और आगे जाके हम लोग एक 100 काम करने के लायक भी बन सकेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग, मैं मुजीब साहब का, जाफ़र सर का, यहाँ पे तमाम मैडम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसी तरीके से हिम्मत बढ़ाकर अपने उम्मत मुसलमान को आगे बढ़ाइए। और इंशाल्लाह ताला ये डेमो क्लासेस मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जाफ़र साहब को गैलेक्सी कॉलेज में ये प्रेजेंटेशंस वहाँ पर भी आप दें। फिर मैं क्या करूँगा, जो पैरामेडिकल के जितने कॉलेजेस है वो कॉलेजेस को भी इंशाल्लाह ताला मैं उर्दू घर में आप लोगों के डेमोस्ट्रेशंस और लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स के भी डेमोस्ट्रेशंस वहाँ पर हम देंगे, ताकि हमारे कॉलेज, हमारे हुदूदों को महदूद नहीं कर लेने का है। हम इतने बच्चों को ये सर्कल्स में करेंगे, हम अनलिमिटेड में जाना है। हमको क्या है, जितने पैरामेडिकल के बच्चे जहाँ पर भी हो, कहाँ पर भी हो, हम उन लोगों तक पैगाम पहुँचाएंगे और उन लोगों को डेवलपमेंट्स करेंगे और उन लोगों को फ्यूचर्स बनाएंगे, उन लोगों को जॉब्स देंगे, प्लेसमेंट्स देंगे और उन लोगों को अच्छे से अच्छे बेहतरीन स्किल्स देंगे। जो जाफ़र सर एक 18 या 20 क्या ना ऐसे स्किल ट्रेनिंग्स के प्रोग्राम जो हॉस्पिटलाइज के लिए ज़रूरी है, तो वो कोर्सेज़ को भी हम लोग बहुत लार्जेस्ट लेवल पे लॉन्च करने जा रहे हैं। मैं वो कोर्सेज़ को सर क्या है ना, माइनॉरिटीज़ के जो चेयरमैन है उन लोगों को मैं बोला, वो एक एप्लीकेशन जो आपसे कोर्स मंगाया था, ये माइनॉरिटीज़ के चेयरमैन को बोला, तो उन लोगों का अप्रूवल भी इंशाल्लाह ताला अपने वो पूरे कोर्सेज़ 18 कोर्सेज़ जो ओल्ड सिटी में क्या न्यू सिटी में भी वो कोर्सेज़ नहीं है, वो कोर्सेज़ के लिए मैं नेशनल, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से भी मैं अप्रूवल करा रहा हूँ वो कोर्सेज़ को। इंशाल्लाह ताला वो अप्रूवल करा के हम लोग यहाँ करेंगे। और अल्लाह ताला के फजल करम से 5-6 हॉस्पिटल्स मेरे पास है, जो गुड़ी का दवाखाना है, हम वहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिकल्स के लिए भेजते हैं। और मुस्लिम मैटरनिटी है, वहाँ पे गर्ल्स को हम लोग इंशाल्लाह ताला वहाँ पे भेजेंगे। ऑक्सीजन 2 है, ये गैलेक्सी हॉस्पिटल है, यहाँ पे भी हम लोग आप लोगों को पोस्टिंग्स देंगे। जो आप लोग क्या है बताना, जो प्रोफेशनल्स है, जो गवर्नमेंट कोर्सेस है 2 इयर्स 3 इयर्स और आफ्टर पीजी के लेवल के, वो अगर आप लोग ग्रेजुएट्स कंप्लीट है तो पीजी के लेवल्स के आप लोग मेडिकल प्रोफेशनल्स कोर्स करेंगे तो वो आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा और मार्केट में उसका डिमांड है। तो ये चीज़ आप क्या है बताना, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स हासिल करने के लिए आप लोग कोशिश करिए। ये नहीं है कि हम 2 मंथ्स 3 मंथ्स हम लोग कोर्स कर रहे हैं, इसके लिए भी हम इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट्स के सर्टिफिकेट्स देंगे। जो शॉर्ट टर्म के लिए जो कोर्सेज होते हैं, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज है, 3 मंथ्स के कोर्सेज है, वो कोर्सेज भी, ताकि आप जब यहाँ से पढ़ के अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको आसानी के साथ जॉब मिले। आपका जो सर्टिफिकेट्स है वो वेरिफिकेशंस हो, वो सर्टिफिकेट्स के ऊपर अटेस्टेशंस हो, जो गल्फ़ में, मिडिल ईस्ट में आप लोगों को आसानी के साथ जॉब मिले। मैं जज़ाकल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ, अल्लाह उम्मत मुसलमान में पढ़ाई में, इल्म में इजाफ़ा अता फ़रमा और उनके हुनरों में इजाफ़ा अता फ़रमा, उनके दिल और दिमाग
दिमाग को या अल्लाह अपने नूर से भर दे और इल्म नाफ़ी अता फरमा, जो नफ़ा देने वाला जो इल्म है वो इल्म अता फरमा, और जिसको हम नफ़ा दे के उसको नफ़ा आगे वालों को नफ़ा पहुंचाने वाला वो इल्म हमारे को अता फरमा। हमारे तमाम परेशानियों को मुसीबतों को दूर फरमा और हमारे इंस्टीट्यूशन को तरक्की अता फरमा। जाफ़र साहब को और तमाम जाफ़र साहब की तमाम टीम को दीन दोगुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। इस इंस्टीट्यूशंस को कामयाबी नसीब फरमा। यहाँ का हर एक बच्चा बेरोज़गार ना रहे, हर एक बच्चा उसको जॉब देने वाला, आप खुद लोगों को जॉब देने वाले बन जाएं। ऐसे मेरे कईयों बच्चे फिजियोथेरेपी और कईयों बच्चे मेरे लैब टेक्नीशियन है, ओन डायग्नोस्टिक सेंटर्स खोलिए से 10-10 साल 20-20 साल से डायग्नोस्टिक सेंटर खोल के रनिंग में चला रहे हैं। आप भी ओन अपने इस्टेब्लिशमेंट्स करें ताकि क्या होता ना, वहाँ पर भी जो बच्चे जो अनट्रेंड हैं उन लोगों को भी आप अपने पास प्रैक्टिकल्स के मौके दें जो आप लोगों के लिए बेनिफिट हो और न्यू जनरेशन्स के लिए भी बेनिफिट हो। मैं जज़ाकल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जो हमने एक बीज बोआ था वो एक झाड़ बन के एक दरख्त बन के फिर एक फल बन के इंशाअल्लाह ताला ज़रूर निकलेगा। जज़ाकल्लाह खैर।